Welcome dear students. Today we will be starting practical problems on finding the correlation using the Carl Pearson's correlation method. Till now we have solved Spearman's rank correlation method. We have solved last 4 sums using the Spearman's rank correlation method, but now we will be using the second method, that is the Carl Pearson's correlation method, to find out the correlation between two given variables. So quickly take a look at the sum. Calculate the correlation between the two variables using the Carl Pearson's correlation method. This is the problem number 5 which we will be solving today, and the two variables, the values of two variables are given as follows. X is 1 2 3 4 5 and y is 7 6 4 5 and 3. So we will put up these values in a table and start solving our first problem on Carl Pearson's correlation method. So before we solve our problem, first let us write down the formula for calculating the Carl Pearson's correlation or coefficient correlation. Okay, so first of all we'll just write down the formula. I want all of you to write down this formula very carefully. It is slightly big formula, but it's very easy to learn. Once you solve number of problems, then it is very easy to learn. So formula goes like this: n times summation of x y, okay, n times summation of x y minus summation of x multiplied by summation of y. Okay, numerator, this is numerator, n times summation of xy minus summation of x summation of y. Okay, this is multiply, n times summation of xy minus summation of x multiplied by summation of y. Now in denominator you will write down square root of n times summation of x square minus whole bracket summation of x square. Okay, now this is different. Okay, n times summation of x square is different and summation of x square in whole bracket is different. ये जब हम सम सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इनमें क्या डिफरेंस है. फिलहाल आप जस्ट लिख दीजिए इसे. आफ्टर दैट अगेन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट n times summation of y square minus summation of y, this will be in a bracket, square. Okay, so this is the formula for calculating the Carl Pearson's coefficient correlation. Okay, so we'll just put this formula in a bracket. Okay, so this is the formula. You have to remember this formula. It's very easy to remember. Numerator में आपको क्या याद रखना है? n times summation of xy minus summation of x multiplied by summation of y, and in denominator first n times summation of x square. Okay, n times summation of x square minus summation of x square multiplied by n times summation of y square minus summation of y square in whole bracket. Okay, so now we will start solving our problem. So the first thing which we will do now is to put these values of x and y. Okay, ये जो values है x and y की, इसे हम इन टेबल में पुट अप करेंगे. तो यहाँ पे जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में हम टेबल यूज करते थे उससे कुछ टर्म्स अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल देखिए, यहाँ पे हमको कौन सी चीज़ें लगने वाली. ये फॉर्मूला में हमें जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप टेबल बनाइएगा. टेबल में आपके x और y तो नॉर्मली हर एक सब में रहेंगे, तो x और y का कॉलम होगा. फिर उसके बाद आपको एक xy का कॉलम करना है, एक x स्क्वायर का कॉलम करना है और एक y स्क्वायर का कॉलम करना है. ओके, इस तरीके से आपको टेबल बनाना है. एंड वंस द टेबल इज रेडी, आपको ये जो हमारा सम था
उसमें जो वैल्यूज है x और y की वो इस टेबल में पुटअप करनी है. तो लेट अस स्टार्ट by putting the values of x and y in the table. Okay, so for x I will start by x. values होगी 1 2 3 4 and 5. okay, y के लिए values है 7 6 4 5 and 3. okay, वैल्यूज हमने पुटअप कर ली है. अब जस्ट कैलकुलेट कीजिए एक्स वाई, कैलकुलेट कीजिए पहले. एक्स वाई मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई. ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल गिव यू 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल गिव यू 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू अगेन 12. ओके, 5 4s are 20 and 5 3s are 50. ओके, तो ये आपकी जो है ये एक्स वाई की वैल्यूज जो है वो आ चुकी है. नेक्स्ट जो हमें करना है वो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है. मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर हमें लिखना है यहाँ पे. तो एक्स स्क्वायर विल बी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. ओके, सो ये वैल्यूज भी पुटअप कर ली हमने. नेक्स्ट आपको वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है. वाई स्क्वायर के लिए 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9. ओके, इस तरीके से आपको सभी वैल्यूज जो है ये कैलकुलेट कर लेनी है. नेक्स्ट आपको कैलकुलेटर ओपन करना है और इन सभी कॉलम्स का टोटल ले लेना है. ओके, इन सभी कॉलम्स का टोटल लेना है. तो पहले तो x, ये जो कॉलम है इसका टोटल ले गए हम लोग. ओके, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, it will come at 15. okay, it will come at 15. आफ्टर दैट जो y है उसका टोटल ले लेना है. y है 7 + 6 + 4 + 5 + 3, इट कम्स टू 25. तो y का भी टोटल हम लोग लिखेंगे 25. ओके, नेक्स्ट एक्स वाई मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y जो है उसका भी टोटल लेना है. 7 मल्टीप्लाइड not multiplied, 7 + 12 + 12 + 20 + 15, it comes to 66. so I will write down 66 here. after that x square का भी टोटल ले लीजिए. 1 + 4 + 9 + 16 + 25 comes to 55. तो write down 55. एंड फाइनली y स्क्वायर का भी टोटल ले लीजिए. 49 + 36 + 16 + 25 + 9 gives you 135. तो I'll write 135. अब ये क्या कैलकुलेट किया हमने? व्हाट डिड वी कैलकुलेट? इसे हम कहेंगे समेशन ऑफ x, इसे हम कहेंगे समेशन ऑफ y, इसे हम कहेंगे समेशन ऑफ xy. this will be summation of x square and this will be summation of y square. So now we will put up these values which we have calculated in the table. okay, so we will start with the value of n. सबसे पहले इस फॉर्मूला में क्या आता है देखिए, n आता है. okay, n. तो n क्या है यहाँ पे? n means number of variables. number of variables मतलब कितना है देखिए, 1 2 3 4 5. ओके, 5, तो n हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई. समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है? समेशन ऑफ एक्स वाई 66 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 66 माइनस समेशन ऑफ एक्स. समेशन ऑफ एक्स
कितना है समेशन ऑफ x 15 15, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y कितना है, समेशन ऑफ y है 25, तो मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज, तो डिनोमिनेटर के लिए आई जस्ट मेक स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर। n तो हमें पता है 5 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर मीन्स ये समेशन ऑफ x स्क्वायर 55, ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस, अब ये क्या है समेशन ऑफ x स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपने निकाला है दिस वन, ओके, ये जो है x, इसका स्क्वायर जो रहेगा वो यहाँ पे लिखना है, मतलब 15 का स्क्वायर, ये जो हमारा 15 है इसका स्क्वायर हमें लिखना है माइनस 15 स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट स्क्वायर रूट में y की वैल्यूज पुटअप करनी है, ओके, y के लिए सेम 5 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ y स्क्वायर, समेशन ऑफ y स्क्वायर कितना है 135 माइनस समेशन ऑफ y, अगेन यहाँ पे क्या रहेगा ये 25, तो 25 का स्क्वायर, ओके, ये वैल्यूज हमने पुटअप कर ली। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, ओके, जस्ट इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 66 विल गिव यू 330, तो सबसे पहले तो 330 माइनस, देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 विल गिव यू 375, ओके, 375, तो 375। Next we will solve for denominator. So 5 multiplied by 55, पहले तो जो फर्स्ट स्क्वायर रूट है उसके लिए सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 55 विल गिव अस 275, तो स्क्वायर रूट में आई विल राइट डाउन 275 माइनस 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज 225, ओके, सो 225, this is the first square. Second is 5 multiplied by 135, 5 into 135 gives you 675, 675 minus 25 multiplied by 25, 625, 625, okay. Now next step, 330 minus 375 minus 375 will give you minus 45, okay, will give you minus 45। डिनोमिनेटर में 275 minus 225, 275 minus 225 means square root of 50 and multiplied by again 675 minus 625 will be square root of 50. Square root multiplied by square root 50 multiplied by square root 50, you will get simply minus 45 upon 50, okay, minus 45 upon 50। इसे बस अब डिवाइड कर लेना है, माइनस 45 डिवाइडेड बाय 50 आप कीजिए तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, आर का वैल्यू मिलेगा माइनस 0.9, ओके। आर हमने पहले ही कहा है कि जो कोरिलेशन होता है इट इज डिनोटेड बाय आर इज इक्वल टू माइनस 0.9। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे फिनिश होता है, ओके। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस है, जस्ट आपको जो फॉर्मूला दिया गया है कार्ल पियर्सन का वो आपको याद रखना है। वंस यू रिमेंबर द फॉर्मूला द सॉल्विंग पार्ट इज एक्चुअली वेरी इजी, ओके।
So this was our first sum. Thank you.